meet, and I'm sure you must be excited. Your film is releasing on the 25th of August now. What do you have to say? What memories do you have with it? Memories is like, it was wonderful working with Babita. He was so encouraging. We had some great times together. He was like a friend. He used to share his Bengali sweets with us. He was very encouraging, as he basically, the memories I have with him is that he used to encourage the newcomers, and it was very, very easy to speak to him and just pick up the phone and call him, and he would always be there for you. That's like. Aapne film mein extensive, you got a very, very, I think, you know, for a lead actor, this film is like a dream, because, you know, we've seen the trailer and you've done extremely well. What do you have to say about, you know, the whole film, because it was a different subject, lovely songs? It was a great experience working in the film. And it was fun to work because the songs are so good. Dada gave the best music, I think, you know, for this, and he sung himself. He sung a couple of songs himself. He's even performed in the film. So it was a great experience. Apache Indian, Boy George. Yeah, I mean, they are like all legends, and so is Dada. So it was wonderful working with them. So कुछ ऐसी memories Siddharth आप share करना चाहेंगे जो film shoot के, you know, you Shatabdi Roy से, Poonam Jawar is there with you. In the film, you know, while shooting, anything that you would like to share with the audience now? We're going to be watching the film after so many years, you know, times have changed, things have changed. I know. So the memories was, in fact, the interaction with Apache was great because he was a superstar then. In fact, he's even famous now. But Apache was very humble, and definitely he came on the sets, and the vibrations were like amazing, and he was like, he comforted us all. We had worked with him. I had a song with him. We had some scenes together, but such a great star at that time, even now. But yeah, he really comforted us all. So कुछ एक ऐसा कुछ incident आप share करना चाहेंगे while shooting with Jayaji or with, you know, any of the crews, or your own, you know, that you would like us to know? Incident. Okay, so we were shooting at in Sikkim, and Shangu Lake, I think. Yeah, and so on our way back, we packed up. It was snowing, and there was an avalanche, and luckily we got saved. And the car in front of us, in which I think there was Manmoji and Birbal, the actors, we could hear some sound coming from the snow. So me and Inai were like, kuch awaze aa rahi hain, you know, let's just try and help. So we start, you know, getting the snow off the car, and then we see two faces, and that was Manmoji and Birbal. So luckily we were saved, and then the army came there. It helped us. Dada was coming in the back car. So in fact, the army came with the ropes and got us down. And then they gave us a shelter to stay, and that was the coldest night. I was freezing. We didn't have so much of clothes. We were not expecting -7 and -10 degrees, but the army was a great help. So that's one memory I can never forget. अब फिल्म इतने सालों बाद रिलीज हो रही है, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को? You know, what are your expectations? How is the family reacting? You know, I'm sure they must be excited. Everybody's, yeah, we are like really positive about the film, and we are hoping, every person hopes when he wakes up in the morning, today's a great day, today's a good day. So I'm just expecting, give your love for Babita. It was his last wish for this film to release, and he made it with a lot of passion, he made it with a lot of love, and that's it, just love him. Siddharth, what is unusual about this love story? What is unusual? I think all love stories are unusual because there can't be a usual love story. So unusual is it's a love triangle, and I'm sure you're going to watch it now, so you will get to see what I'm talking about. But every film in
Indian cinema. They want to make it something different, and this is a bit of a different film. Obviously adaptations from here and there, but I'm sure you would want to watch it now, and then you can tell me what was so unusual. पप्पी दा का म्यूजिक है, पप्पी दा खुद भी ये फिल्म है, तो म्यूजिक कैसा है और क्या यूएसपी रहेगी फिल्म की आपको लगता है पप्पी दा के होने से? दादा का म्यूजिक है तो फिर कैसा, मतलब आप सोच ही सकते हो कि कितना अच्छा होगा. एंड ही यूज्ड टू कनेक्ट विद द मासेस ऑल्सो. ये डिस्को किंग रह चुके हैं और क्लासिकल भी इतना किया है इन्होंने. इनफैक्ट इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का म्यूज़िक ही चेंज किया है बाय गेटिंग डिस्को. सो आई थिंक दादा इज़ काइंड ऑफ इंटरनेशनल फेम बिकॉज ही इज़ फेमस ऑल ओवर, right from Jimmy Jimmy to his songs like Chalte Chalte from that film. And so Dada has been a versatile musician and he's famous worldwide. एक वक्त था बॉलीवुड में खासकर लव स्टोरीज ही बनती थी, सक्सेस का फॉर्मूला था, और अब वक्त पूरी तरह से बदल चुका है. लोग बहुत नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं. आपको लगता है ऐसे दौर में लव स्टोरी आज की जनरेशन पसंद करेगी? Of course, love story तो evergreen होती है. हर मतलब even the teenagers पहले तो they fall in love, and I don't think anything is stronger than love. War तो चलो ठीक है, झगड़ा तो ठीक है, but I think love conquers it all. आपके कैरेक्टर के बारे में कुछ रोशनी डालेंगे? कैरेक्टर okay, तो नॉर्मल गाय, ही हैज़ सम इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम्स, बट जो भी हैं वही रोमांटिक हीरो. I think you should watch the film for this. We'll get the director also to join in. Riaz, chair. रब का शुक्रगुजार हूँ कि फिल्म आ रही है, और सबसे दूसरी बात यह है कि दादा मेरे हमेशा फेवरेट रहे हैं और मैं दादा का फेवरेट रहा हूँ. अब मैं दादा का फेवरेट क्यों हूँ, आई जस्ट डिस्क्लोज लिटिल बिट. माय गुरु मिस्टर बापू, वो मेरे मोहब्बत, मेरा धर्म, दिल जला, प्रेम प्रतिज्ञा, प्यारी बहना, एंड आई वॉज एसोसिएट विथ हिम, एंड दादा का ही म्यूज़िक था. तो दादा के साथ मेरी एक रैपो था. दादा ने मुझे प्रॉमिस किया था जब मैंने प्रकाश मेहरा जी की फिल्म साइन की थी 94 में, उसके बाद में उन्होंने कहा था जब मैं फिल्म बनाऊंगा तो आपको ही लूँगा. तो दादा ने मेरे साथ बैठ कर स्क्रिप्ट शेयर किया, फिर हम लोगों ने उस पर काम किया. हम लोग लोकेशन देखने गए, लंदन, सिक्किम वगैरह. जब हीरो की बात आई तो मैंने कहा कि सिद्धार्थ इज़ माई गुड फ्रेंड, सिद्धार्थ से बेटर चॉइस नहीं हो सकती है, एंड इस तरह हमने इस फिल्म की शुरुआत की. शूटिंग जब कोई बहुत बड़े लेवल पे हुई, वी हैव यू नो इंटरनेशनल सिंगर्स लाइक अपाचे इंडियन, बॉय जॉर्ज, जो बहुत रेयरली हिंदी फिल्म्स में कभी हमने देखे हैं, यू नो गिवन देयर लेंड देयर वॉइस. सो जो म्यूजिक का सेटअप था बहुत बड़ा सेटअप है, ब्यूटीफुल सॉन्ग्स. सो क्या रहा दादा का, क्या टेक रहा व्हाइल मेकिंग म्यूजिक? मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बताना चाहता, आई वॉज प्रेजेंट इन लंदन. जब दादा गाना रिकॉर्ड कर रहे थे तो मुझे लगा कि महबूब स्टूडियो की तरफ बहुत बड़ा स्टूडियो होगा और वहाँ पर बॉयजर साहब का गाना रिकॉर्ड होगा और अपाचे इंडियन का गाना रिकॉर्ड होगा. लेकिन जब हम पहुँचे तो 10 बाय 12 का एक कमरा था, सिर्फ दादा थे और दादा के बेटे जो पप्पा थे और सिर्फ बॉयजॉर्ज अपाची थे. इन चारों ने मिलकर पूरा दादा ने कंपोज करके गाना लाए थे मुंबई से, और बॉयजॉर्ज सो नाइस, और आए 2 ही टेक में गाना उन्होंने ओके कर दिया. और वो दादा को इतना मानते हैं, हम शायद इंडियन ये नहीं जानते हैं कि फॉरेन में दादा की कितनी वैल्यू है. इसीलिए उससे पहली पिक्चर में भी समंता फॉक्स को लाया था उन्होंने, और इस फिल्म में भी अपाची इंडियन एंड बॉयजॉर्ज को लाया है. सर, जो लव स्टोरी दीवानों की जो है, इसमें किस तरह से गाना रहेगा, या रोमांटिक गाना रहेगा या सेट सॉन्ग रहेगा, इसके बारे में बताइए. देखिए क्या है, लव तो बाप बेटी के साथ होता है, भाई भाई के साथ होता है, माँ बेटों के साथ होता है, हस्बैंड वाइफ के साथ होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ होता है. प्यार तो है, प्यार है तो जीवन है, प्यार नहीं तो जीवन नहीं. तो लव स्टोरी दीवानों की में भी कुछ दीवाने ऐसे हैं जिनकी ये लव स्टोरी है. और ये फिल्म सिर्फ रोमांटिक ही नहीं बल्कि बहुत ही टीयर जरकर इमोशनल फिल्म है. एंड जो जया प्रदा जी ने रोल किया है सिद्धार्थ के साथ में, उनकी जो रैपो है, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो केमिस्ट्री है, दैट वाज फैंटास्टिक. आप देखेंगे फिल्म तो आपको पता चलेगा. सर, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा सर लव स्टोरी दीवानों? सर, एक्सपीरियंस का जहाँ तक ताल्लुक है, आई हैव बीन वर्किंग सिंस लास्ट डेकेड. I work with Rakesh Roshan sir, with Khud Ghar, Khun Bari Maan, Kishan Kanhaiya, Kala Bazaar, KL King Uncle. I work with Mukul Anand sir, with Khuda Gawai as associate director.
and I made this film. So every step is a good step, and Bapida's entire family is a fantastic. ऐसा लगने दिया एक चीज़ में भी उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया. मैंने जो चाहा वो मुझे मिला. बेस्ट कैमरा, बेस्ट फोटोग्राफर, बेस्ट एडिटर. माय एडिटर इज गेटिंग अ 2 Filmfare Award, मिस्टर संजय वर्मा फ्रॉम खून भरी मांग एंड किशन कन्हैया, और माय कैमरामैन इज फ्रॉम यशराज फिल्म. सर टाइटल यही क्यों रखा गया, लव स्टोरी दीवानों की? सर इसमें कुछ दीवानापन भी है ना. दीवानापन ऐसा होता है जिसको डिस्क्लोज नहीं बल्कि देखने से पता चलेगा कि दीवानापन है या नहीं. और लव करने वाले, प्यार करने वाले तो दीवाने होते हैं. जब तक दीवानगी नहीं होगी तो प्यार कहाँ से आएगा साहब. सर आपसे क्वेश्चन है किस तरह से आप जो है इसमें आपको अच्छा लगता है, किस तरह से आप दीवाना होते हैं इसमें? सर देखिए, जहाँ तक काम का ताल्लुक है तो इमोशन हर एक में भरा हुआ है. आप एक्शन फिल्म भी देख लीजिए. यू सी पुष्पा, यू सी अनदर फिल्म्स, यू सी गदर, सी सब फिल्मों के अंदर क्या है, लव है, इमोशन है. तो बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, इमोशन तो पहले चाहिए. इमोशन के बगैर यू कैन नॉट मूव, यू नेवर बी लाइक अ ह्यूमन बीइंग. सर आपका कैसे रहा जर्नी? Yeah, with the director while making of the film. Oh, we were very easy to communicate, and he used to explain the scenes, and he knew the pulse of the film, so it was very easy to communicate with Dinarji, because we were friends also, so बहुत अच्छा रहा और बहुत comfortable रहा. जयाप्रदा जी भी Oh, I'm in awe of her. She's so pretty. The minute I used to see her, I was like, oh my God, this is beauty. Yeah. But she happened to be my sister. Yeah. So how is anything that would like? Oh, she's so sweet, so down to earth. She's like very friendly. She makes you comfortable. Even if you're a bit nervous, then she'll comfort you and she'll be like, come on, let's rehearse and let's do the scene. You know, she's very sweet, very humble. Anything, any message that you would like to give to the audience? Messages, yeah. Please shower your love on Bapida's film, his music, and the disco king as we all know him as. और हम एक ही चीज़ कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में टू द ऑडियंस कि ये फिल्म है जो बपीदा ने बहुत दिल से बनाई है. हम चाहते हैं कि आप थिएटर तक आएँ और इस फिल्म को देखें तो हमें बहुत खुशी होगी. बहुत बहुत शुक्रिया. तो इसमें कितने गाने हैं सर? स्क्रिप्ट के साथ में मर्ज होती है और जिसको गाने में भी काफ़ी कुमार शानू साहब, अलका याग्निक, रेमा लहरी, बप्पा लहरी, अरुण बख्शी और उदित नारायण सब लोगों ने गाया है. आपको बहुत अच्छा लगे. गाने अलग-अलग राइटर ने लिखे हैं? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ. Thank you so much. थैंक यू. Thank you. बाकी का Congratulations, firstly, all kudos to you for releasing Bapida's film, जो उनका dream project था. As family आप लोग आगे आए और you made efforts to release a film जो बहुत rarely देखा गया है. क्या कहेंगे गोविंद जी, आपसे शुरुआत करेंगे. मैं ये दादा का सपना था, किसी कारण से रिलीज नहीं हो पाई थी. कोविड में भी हम लोग पहले इसका प्लान कर रिलीज़ करते हैं, पर ऐसा हादसा हुआ कि मतलब उसका तो कोई जब वो नहीं है. फिर एक हम लोगों ने सोचा कि कैसे भी इसको रिलीज़ करना है. फैमिली का एक प्रोजेक्ट था, दादा की बहुत यादें जुड़ी थी इसमें, और मतलब बहुत लोगों की यादें, बहुत लोग साथ में हैं इसमें. तो इसलिए मैंने एक प्लान किया कि कैसे भी SRG फिल्म जो हमने बनाया अभी प्रोडक्शन जो पहला फिल्म हम दादा वाला फिल्म रिलीज़ करेंगे, तो इसलिए इसको स्टार्ट किया. Rima, आज of course आप emotional है, we can all see that. I'm sure we all miss Dada always. How excited are you today? उनकी dream realize हो रही है, उनका project release हो रहा है 2024 all over India, all over world. Yes. तो नमस्कार. आज बहुत ही इमोशनल डे भी है और बहुत ही खुशी का दिन भी है कि डैडी का बहुत मेहनत है ये पिक्चर के पीछे. उनका म्यूज़िक बोलो, आप शूटिंग बोलो, और इतने दिन का मेहनत आज हम लोगों को दिखा रहे हैं. एंटरटेनमेंट, ही इज़ अ गॉड ऑफ एंटरटेनमेंट. और बहुत ही मेहनत से उन्होंने ये पिक्चर बनाया था. और फर्स्ट टाइम तो रॉक डांस में समंथा फॉक्स को लाए थे. पर ये पिक्चर इतनी स्पेशल है क्योंकि 2 इंटरनेशनल स्टार्स है, अपाचे इंडियन एंड बॉय जॉर्ज, जो दादा ऑलवेज अहेड ऑफ टाइम थे और वो ऑलवेज कुछ नयापन लाते थे अपने म्यूज़िक में, बोलिए अपने मूवीज़, अपने ट्रेलर्स, अपने म्यूज़िक वीडियोस, एल्बम्स में. ही वाज अ डिफरेंट लेवल ऑफ पर्सन एकदम ही. और अपने ये पिक्चर में भी उन्होंने बॉय जॉर्ज और अपाचे इंडियन को लाया फॉर डिफरेंट एक अलग नयापन लाया ये पिक्चर में.
और ओ चाची जो अपाची इंडियन ने गाया है गेस्ट अपीयरेंस, है बॉय जॉर्ज। और ये पिक्चर खाली सिक्किम और गैंगटॉक और इंडिया में नहीं पिक्चराइज हुआ है, ये लंदन में भी हुआ है। तो बहुत जगह में ये शूट हुई है, हाँ शूट किए हैं। और बेसिकली रोमांटिक, सिंपल रोमांटिक म्यूजिकल है। म्यूज़िक बहुत स्ट्रॉन्ग है इस पिक्चर का। और दादा ने खुद गाया है, अलका दीदी ने गाया है, और अलका दीदी, दादा, सुनीति एंड बॉय जॉर्ज, ऑफ कोर्स अपाची इंडियन, तो शानू कुमार शानू जी। तो बहुत ही अच्छा मूवी है, सिंपल मूवी है, पर कुछ सर्कमस्टेंसेस के लिए हम लोग रिलीज़ नहीं कर पाए तभी, क्योंकि बहुत कुछ आया गया एंड चेंजेस, लाइफ इज़ फुल ऑफ चेंजेस, रोलर कोस्टर है। जब समय आता है जब वही और कोविड के टाइम में भी, जब लॉकडाउन के टाइम में दादा ने डिस्कस करते थे कि गोविंद ये पिक्चर चलो हम लोग रिलीज़ करते हैं, कैसे भी करके मेरे को रिलीज़ करना है, मेरे इतने अच्छे म्यूज़िक लोग देखे, उसको अच्छा एंटरटेन करे लोगों को। तो उसके बाद तो ऐसा बड़ा मिसअप हो गया कि हमने कभी सोचा ही नहीं कि ये दिन इतना जल्दी आ जाएगा। तो अभी भगवान की मर्ज़ी है एनीवे, तो हमने सोचा कि अभी जब थोड़ा बहुत सब कुछ ठीक ठाक है तो वाई नॉट हम रिलीज़ करें और दादा के ड्रीम्स को, दादा के अधूरे सपने को हम पूरा करें। कोई ऐसा वाक्य है दादा का शेयर करना चाहिए इस फिल्म को लेकर जो? हाँ वाक्य बहुत है, हाँ बहुत सारे वाक्य। फिल्म को लेकर क्या? मैं तो पूरे शूटिंग में ही थी, क्योंकि मैं बहुत यंग थी तभी, तो आई वॉज इनटू द प्रोडक्शन और दादा के साथ ही थी। हर एक सीन में मैं काम कर रही थी। आई वॉज सीइंग द प्रोडक्शन, आई वॉज रनिंग अराउंड, यू नो हाउ इट इज़, इट्स हार्ड वर्क टू मेक अ मूवी। तो इसमें उनका बेसिकली ये था कि उनका म्यूज़िक जो उनका मेन पावर है ये पिक्चर का, और ऑफ कोर्स द स्टोरी में भी उनका बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने स्टोरी भी बहुत ही इमोशन, आप जब मूवी देखोगे तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं इमोशंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस मूवी। और म्यूज़िक बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड आइटम सॉन्ग्स है 2 और एक अपाची और बॉय जॉर्ज का। दादा ने खुद भी एक प्रमोशनल वीडियो किया था, गाएंगे, वो गा रहे हैं, आप देखोगे वो मूवी में, रोलिंग टाइटल में है। दादा का जो दिल है डिस्को वाला का इसमें है? हाँ है ना, क्यों नहीं, अरे भाई वो तो है ही। पहचान है, जो जिंदगी है। ऑफ कोर्स जैसे वो बॉय जॉर्ज का गाना है, रात रात भर नींद न आए, महबूबा की याद सताए। So he starts with a doha, with a romantic, and when will you learn from your tears and your sufferings, Boy George का गाना। तो he brought the doha folk, the mellow, the Indian folk जिसको हम बहुत सूफियाना, with Boy George को लाए। तो आप जब सुनोगे गाना आपको लगेगा कि क्या दादा का क्रिएशन और कैसे वो लाए इतने सुंदर तरीके से। गोविंद जी आपके साथ दादा की रिलीज जब वो हमेशा चाहते थे ये फिल्म जल्दी रिलीज हो, मेरे साथ दादा का मेमोरी हमेशा ही, जब भी बैठते थे मैं दादा तो कुछ ना कुछ नए प्लान करते थे। ऐसा भी मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी मैं जैसे ये फिल्म से रिलेटेड दादा बोलते हैं गोविंद जी बहुत पहले उन्होंने एक फिल्म बनाया है एसवी फिल्म में उन्होंने, और रिलीज हुई है रॉक डांस। उसमें एसवी फिल्म मतलब एस मुखर्जी साहब की वाइफ मतलब और दादा की मदर, तो दोनों के नाम से एसवी मुखर्जी एसवी फिल्म बनाया। तो उनकी बहुत इच्छा रहती, पर दादा इतने बिजी रहते थे कि फिल्म बनाने में टाइम नहीं दे पाते थे। ये पहला फिल्म हिट हुआ, अच्छा हुआ, फिर उन्होंने प्लान किया दूसरा फिल्म, पर किसी कारण से कहीं ना कहीं तो बोले गोविंद मेरी इच्छा है पर मैं इसको कंप्लीट नहीं हो पाती है कोई भी। तो बोला अभी गोविंद तुम आ गए तो अपन अब सब कंप्लीट करते हैं। तो फिर भी किसी कारण से होता है ना डिले, फिर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट किए दादा ने साथ में, जैसे फिल्म स्टार्स किए, बहुत लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए बहुत काम करने की इच्छा रखते थे। ये सारी बहुत सारी यादें हैं। जैसे दिन निकलते गए, देन एक के बाद एक हिट्स एंड ही इज सिंगिंग एंड शोज एंड ऑल, तो उतना देन कोविड आ गया तो वो एक है, देन उनका तबीयत पूरा हेल्थ डिटोरेट हो गया। तो फिल्म में जयाप्रदा एंड साथी रॉय हैं, सिद्धार्थ धवन हैं, पूनम झावर, अपाची इंडियन, singers are all Alka ji is there. Yes, Kumar Shanu. Yes. So for its time then it was one of the biggest projects. So what are your emotions today? As filmmakers, both of you together have taken this initiative to release it. Well, first emotion तो ये था कि ये पिक्चर तो ज़रूर हम रिलीज़ करते हैं, आज नहीं तो कल, पर
दादा नहीं रहेंगे साथ, ये कभी नहीं हम लोगों ने सोचा भी नहीं। इतनी जल्द ये दिन हम लोग को देखना पड़ेगा एंड ही विल लीव अस एंड गो सो सून। ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम रिलीज करेंगे, पर जिनका सब कुछ है, एक एक चीज़ उनका है, वो ही नहीं रहेंगे। So this is what life is all about, and you know we should learn from such things that you know this is what it is. ये first emotion है कि we regret, he's there, हमारे साथी, हम उनका आशीर्वाद है साथ में, हमारे साथी है। पर एक होता है ना, उनका presence is equal to crores of people. His presence nobody can take, कोई ले नहीं सकता उनका जगह। एंड सेकेंड है कि दैट उन्होंने बहुत मेहनत किया है ये पिक्चर में, और मतलब ही इज़ अ किंग, वो राजा जैसी रॉयल लाइफ लीड किए हैं, पर एज अ प्रोड्यूसर शूटिंग में जाना, शूटिंग के ताम झाम झेलना, देन सेट देखना, देन कोई कुछ बोलता है, ही इज़ नॉट यूज टू दैट ना। दादा कभी तो यूज टू नहीं थे, तो ऑफ कोर्स वो सब बहुत मेहनत, टेंशन बहुत लिया है, बट ही वॉज वेरी काम, ही नेवर शोड कोई ही वॉज अ वेरी काम पर्सन, और सब कुछ अच्छे से संभाल लेते थे। स्टारकास्ट की बात करें, कौन कौन है इसमें? इसमें जया प्रदा जी है एंड सिद्धार्थ धवन एंड बॉय जॉर्ज, अपाची इंडियन, शताब्दी रॉय, राजेश जौहरी, पूनम झावर, और ये सब भाई बहन इमोशनल स्टोरी है, बहुत ही इमोशनल एंड वेरी गुड म्यूजिक एंड वेरी गुड लोकेशन। आप हम लोग ने शूटिंग किया है गैंगटॉक छांगू लेक में, जहाँ वो मैं तो थी डैडी के साथ, हम लोग एक बार फंस भी गए लैंडस्लाइड में, बहुत कुछ हंगामा हो गया था, और आर्मी लोगों ने हम लोग को बहुत हेल्प किया था शूटिंग के दौरान, एंड आई रियली सैल्यूट एंड बिग थैंक यू टू फौजी पीपल एंड द आर्मी पीपल देयर इन गैंगटॉक एंड सिक्किम, छांगू चाइना बॉर्डर में हम शूटिंग कर रहे थे। तो ये गाना जो है दीवाना हूँ मैं तेरा, आप देखोगे ऐसा लगेगा आप स्विट्जरलैंड में हो, पर इट इज़ इंडिया, इट इज़ आवर इंडिया एंड वी आर सो प्राउड ऑफ इट। एकदम वाइट इसमें, जहाँ वो रोमांटिक गाना है, ब्यूटीफुल लोकेशन है, एंड शिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी, दादा का गाँव ही है वो, ही इज़ फ्रॉम शिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी। तो हम लोगों ने पूरा वो टी बगान और जो चाय पत्ती का जो खेत है उसमें हम लोगों ने शूटिंग किया था। सो बहुत मेमोरीज है। थैंक यू। दीवाना हूँ मैं तेरा, मेरी धड़कन पे पहरा तेरा, हो दीवाना हूँ मैं तेरा, मेरी धड़कन पे पहरा तेरा, चुन लिया है लाखों में जिसे आपकी वो सूरत है, मेरी धड़कनों की सनम तो पहली जरूरत है। हाँ हाँ हाँ। With Apache and thank you so much. With Apache and international masala, जो दादा was always, he's an international world famous man, so he always had that touch कि मेरे पिक्चरों में कुछ एक अलग सा एक हट के होना चाहिए for the Indian public, and he did it always. SRG फिल्म के आगे के प्लान्स? अभी SRG में एक नया फिल्म रेडी है, वो अभी सितंबर एंड में हम लोग रिलीज़ करने का प्लान कर रहे हैं, उसका नाम है हम तुम्हें चाहते हैं। उसके बाद एक अक्टूबर या नवंबर में फिर एक दूसरा फिल्म भी रेडी है, वो मराठी फिल्म है, उसका टाइटल है सुदागढ़ 07। वो एकदम एक्चुअल नेचुरल आर्टिस्ट के ऊपर डिपेंड है, दोनों ही अच्छी चीज़। इंटेलेक्चुअल मूवी, दैट इज आर्ट मूवी इसे बोलते हैं, दोनों मूवी रेडी है। Rego is doing extremely well with his music career. You know, both have put Thank you. lovely efforts. Thank you What very would you much. like to say for his music innings? Well, Rego is only 13-year-old, 13 साल का है, and उसका first album बच्चा पार्टी, as you know, he's a सारेगामा artist, and he got auditioned by the सारेगामा and chose with an album, and 5-6 million उसका first album में हुआ है, and he had a very good, people liked his singing, his swag and the way he sings, and of course the looks of his dada also he has, of his dadu, so he is doing well, he is still learning, अभी बहुत learn कर रहा है और करता रहता है मेहनत,
एंड अभी ये हम तुम्हें चाहते हैं में ही इज़ डन डेब्यू एज अ प्लेबैक सिंगर. आप देखोगे तो बहुत मज़ा आएगा. गाना एकदम एंटरटेनिंग है. द सॉन्ग इज़ ऑलमोस्ट लाइक बम्बई से आया मेरा दोस्त, एंड इट इज़ शॉट वेरी वेल. और ये एक इतिहास में है. मैं बोलना चाहती हूँ पूरे प्रेस को कि मीडिया को कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि दादा के म्यूज़िक में रेगो ने गाया है, मतलब ग्रैंडफादर की ट्यून में ग्रैंडसन ने गाया है. सो दैट आई थिंक इन द हिस्ट्री होगा फिल्म इंडस्ट्री में कि ग्रैंडसन इज सैंग एट सो यंग 13 year old ही सैंग राजपाल यादव जी के ऊपर. इस कॉमेडी पूरा मसाला वाला गाना है, एंटरटेनमेंट गाना है, जनता गाना है, एकदम मस्त गाना है, बहुत ही उम्दा गाना है. तो गाया भी बहुत अच्छा है. तो बस मैं चाहती हूँ कि आप लोग आशीर्वाद दें रेगो को और हम एसआरजी फिल्म्स के सपोर्ट करें. एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर एंटरटेनिंग पीपल और दादा का लेगेसी आगे लेके जाएं और रेगो को आशीर्वाद दीजिए. अभी बहुत सीखना बाकी है, बहुत आगे जाना बाकी है. कर रहे हैं. लव स्टोरी दीवानों की रिलीज हो रही है, क्या उम्मीद है आपको? वेल उम्मीद तो बहुत ही पॉजिटिव है क्योंकि मुझे अभी ऑलरेडी इतने फ़ोन कॉल्स आए दादा के फैंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, न्यूयॉर्क से भी कि वी आर मोस्ट अवेटेड फिल्म, यू वांट टू सी लव स्टोरी दीवानों की. क्योंकि फैंस तो सब जानते हैं ना कि ये पिक्चर रिलीज नहीं हुआ है, ऐसा हुआ है वैसा. दे नो एवरीथिंग अबाउट हिम. तो आई एम श्योर दैट पिक्चर अच्छा ही होगा एंड अच्छा चलेगा. एंड दादा के म्यूज़िक फैंस लोग जो है जो उनको रिस्पेक्ट करते प्यार करते दिल से, तो उनको उनके लिए है एक गिफ्ट है. जाते जाते भी एक गिफ्ट देके गए हैं. और दिस इज जस्ट अ प्यार एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर फादर. देयर इज नथिंग for any business or anything, you know, we don't need that. God is being very kind to have a father. डैडी जैसे डैडी मिला है, भगवान है हमारे. खाली मंदिर छोड़ के चले गए हैं, पर the thing is हम उम्मीद करते हैं कि सबको अच्छा लगेगा. उनकी आवाज़, उनकी एक मेमोरी, अगेन बैक टू दैट थिंग, यू नो व्हाट आई मीन. बहुत अच्छा म्यूजिकल, बहुत अच्छा है, वेरी गुड. फिल्म को किस तरह से रिलीज कर रहे हैं, कितने सिनेमा घर में, कहाँ? अभी 150 सिनेमा में 150 वर्ल्ड वाइड. या उसके बाद OTT उसका भी ऐसा कोई खास प्लान नहीं है. अभी 150 सिनेमा में अपन हिंदुस्तान में. ओवरसीज अभी प्लान चालू है, अभी किसी से कनेक्शन नहीं हुआ है. अभी वर्ल्ड वाइड रिलीजिंग का है, पर इंडिया में 150 थिएटर में अपन रिलीज कर रहे हैं अभी उसको. उसके बाद OTT प्लेटफॉर्म जो भी जैसे बात होगा रिलीजिंग के बाद. आपको नहीं लगता कि ये फिल्म थोड़ा बहुत ज़्यादा डिले हो गई है, तो आज की जो ऑडियंस है इसको पूरी तरह से एक्सेप्ट कर पाएगी? क्योंकि पूरा ज़माना चेंज हो गया है कोविड के बाद से, तो इस पर आपको थोड़ा सा डर भी है कि सिर्फ इमोशंस आप लोग? कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है भाई. दादा का गाना कभी पुराना नहीं होता है. वो आप सुनेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा. और फाइनेंशियल कोई लेना देना नहीं है फिल्म से. हमारा एक ही मकसद है कि इस फिल्म को रिलीज करना है और लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि दादा ने बहुत अच्छा काम किया है इसमें. एक ही मकसद है इसमें. थैंक यू. What would you like to say remembering Dadu now? You know, his film is releasing, which was his dream project. So this ये मूवी जो था ये दादू का मोस्ट अवेटेड फिल्म था. दादू हर समय कोविड का टाइम बोलते थे कि रिलीज़ करो. दादू ये सिर्फ दीवाना हूँ मैं तेरा और अपाची जी के गाने सब सुनाते थे हम लोग को, और हम लोग को बहुत पसंद आया. तो हम लोग पूछते दादू कभी रिलीज़ कर, जल्दी रिलीज़ करो. एंड तो अभी फाइनल रिलीज़ हो रहा है एंड फाइनली द वेट इज़ ओवर. And let's hope this music rocks, the film rocks. आप उनकी मेमोरी में कौन सा गाना गाना चाहेंगे, which has been his favorite maybe from this film? From this film, I think Deewana Mein Tera is the title song. The title song is the favorite. But today, what I want to sing is Dadu's most awaited song, Chalte Chalte. Please. For him. बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर, हम लौट आएंगे तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, चलते
चलते मेरे ये की याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। Thank you so much. Thank you. You just have the picture with the main star cast. Siddharth, can we have you here, please? क्या मायने रखती है फिल्म? सबसे पहले तो मैं ये फिल्म इसलिए भी मेरे लिए बहुत बड़ी फिल्म है क्योंकि एक मिराकल है इतने समय बाद ये फिल्म का रिलीज़ होना, और इनकी हिम्मत है और दादा की ब्लेसिंग है कि मैंने इतने समय में नहीं देखा कि कोई फिल्म इतने समय बाद बन के रिलीज़ हो और बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। थिएटर्स में आप रिलीज़ कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले तो ये बात है कि इतना मिराकल है, हम सब बहुत खुश हैं। उसके बाद दादा ने बहुत अच्छा फिल्म बनाया था जब तक हमने देखा था, क्योंकि बाद में हम देख नहीं पाए क्योंकि दूसरा एडिट हुआ, ये हुआ। लेकिन जो फिल्म बनी है, जो लोकेशन है, सेट ब्यूटीफुल है। मैं उसमें सिद्धार्थ की गर्लफ्रेंड का रोल कर रही हूँ और फिर मेरी डेथ हो जाती है और उसके बाद शताब्दी आती है, वो फिर किस तरह से उनको हैंडल करती है, वो सब कहानी है। सो ब्यूटीफुल 2 सॉन्ग्स आर देयर और दादा का ब्लेसिंग है और हम सब वेट कर रहे हैं कि ये फिल्म हम एटलीस्ट देख तो थिएटर में जाकर थिएटर में जरूर देखेंगे। मैंने अभी तक कोई फिल्म बहुत समय से नहीं देखी पर ये जरूर जाऊंगी। दादा का म्यूजिक हमेशा से सराहा गया है जी। आज की जो नई पीढ़ी आ रही है उनको भी इसके जरिए दादा के मेलोडी सॉन्ग सुनने को मिलेंगे, जानने को मिलेगा, क्या कहेंगे आप? हाँ, सॉन्ग्स एवरग्रीन है, मतलब ये नहीं कि 20 साल पहले ये सॉन्ग बने, लेकिन वो अभी भी लगेंगे कि वो आज ही दादा ने बनाए हैं। इतने एवरग्रीन सॉन्ग्स हैं और मेलोडी बहुत अच्छी है और इन्होंने लोकेशंस पे जो शूटिंग की है बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। मतलब प्रेजिंग तो होना ही चाहिए कि डायरेक्टर ने जो हमारे साथ काम किया उसमें, और हम तो सब एकदम बच्चे जैसे थे, लेकिन enjoying this thrill, ये मिराकल, मतलब गूज बम्स है मुझे। अटक गए स्नोफॉल में, छांगू में लैंडस्लाइड्स हो गया, बहुत खुश हुआ। बहुत सारी चीजें, लेकिन फाइनली जो रिजल्ट अगर कभी अच्छा आता है तो उससे बड़ी कोई चीज ब्लेसिंग नहीं होती है। सो दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट नाउ। आपकी करियर की शुरुआत के साथ जी एक भाभी टाइप वाले रोल से हुई थी, बोल्ड रोल है इसमें, किस तरह का रोल? नहीं, डोंट कॉल दैट मोहरा भाभी, ओके। मैं बच्ची थी, बच्ची को साड़ी पहना देगी तो भाभी नहीं बन जाएगी। बट आई हैड अ वेरी स्वीट इंडियन रोल और इसमें भी मैं वेस्टर्न हूँ और मैं एक एरोस्टेज हूँ और वो जब अपने काम पे जाते हैं वहीं पर उसका क्रैश होता है। बट जो मैं हूँ, जो मैं थी उस वक्त, वो मैं इस फिल्म में हूँ, क्योंकि मुझे बनाया नहीं गया कि आप साड़ी। नहीं, मैं एक बात कहना चाहूँगा पूनम के रोल के बारे में। दादा ने जब इस पिक्चर की कहानी को पेंट किया था तो उन्होंने कहा था कि इसकी कहानी की शुरुआत जो है ना एक ऐसी लड़की से करेंगे और उस लड़की की थ्रेड के साथ में जब हीरो का रोमांस डेवलप होगा और वो एक दिन उसको लेकर अपनी बहन के घर जाएगा, स्टेइंग इन द लंदन। तो वो सिचुएशन जब चल रही थी तो इनका रोमांटिक गाना था, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है इनका कि मेरी पहली तमन्ना तुम हो, मेरी दूसरी तमन्ना तुम हो, मेरी तीसरी तमन्ना तुम हो, मेरी आखिरी तमन्ना तुम हो। वो तमन्नाओं के बीच की इनका जो लेके चले थे और एक पॉइंट के ऊपर ये वापस ही नहीं पहुंची तो हमारे जो हीरो साहब थे उनके दिल पे सदमा पहुंचा और उसके बाद में फिर बहन और भाई का जो इमोशन ट्रैक चला है फिर वो कहानी आगे बढ़ती चली गई और बीच बीच में इनके जो फ्लैशेस आते थे वो कहानी को और आगे बढ़ाते थे। तो शी डन अ वेरी गुड जॉब इन द फिल्म। थैंक यू। हैप्पी एंड सेंटिमेंटल टुडे। मुझे निदा फाजली साहब का एक शेर याद आ रहा है, सीधा साधा डाकिया जादू करे महान, एक ही थैले में लिया आंसू और मुस्कान। Today we don't have Bappi Lahiri, but I think his blessings and his entire gorgeous and talented family is memorizing his contribution to the world. We all know Bappi Da right from the childhood. He became one of the most popular music director in Russia. I am a disco dancer, is a rage in Russia even now. So this is exceptional achievement he got. He did not compromise with his principles. He filed a case in the United States, and I think he won $500 million award, which is
first time that Westerns are plagiarizing Papida. और मुझे लगता है इसमें लव स्टोरी दीवानों की ये बहुत दिनों से ड्यू थी, इसमें अपाचे इंडिया और तमाम ऐसे ensemble है जो मैं समझता हूँ कि मैजिकल एंड म्यूजिकल एक्स्ट्रावेगेंस आपके सामने आने वाला है। इसमें सिद्धार्थ धवन जो कि मेरी फैमिली है, आई एम वेरी प्राउड that I'm watching this film, and I've been really waiting for this film, and I must appeal everyone, go and watch this film. This is the treat of music because it's a great confluence of Boy George, Apache Indian, and the king of disco, Bappi Lahiri. I wish all the best. Thank you very much. डिस्को को लाने वाले जन्मदाता है बप्पी दा, क्या कहना चाहिए डिस्को के बारे में? देखिए, बप्पी दा जो है पायनियरिंग, हमेशा उन्होंने पायनियरिंग वर्क किया। उनका जो भी गाना है वो मैं समझता हूँ कि लोगों के ज़बान पर बिल्कुल जैसे मक्खन की तरह से मेल्ट होता है। इट वाज लाइक दैट, ही क्रिएटेड एन इम्पैक्ट, और अभी तक उनका कोई रिप्लेसमेंट आया नहीं है। और मैं गारंटी करता हूँ जो सुर उन्होंने लगाए उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं। जैसे इन्होंने कहा कि उनका ना तो कोई रिप्लेसमेंट आएगा ना होगा। आई थिंक ही इज इटर्नल, ही इज इमॉर्टल, एंड ही विल रिमेन इन हार्ट फॉर ऑल द टाइम्स टू कम। थैंक यू। पुराना एक वाक़या शेयर करेंगे बप्पी दा के साथ? मैं हमारे मित्र हैं बीच में कॉमन शुबीर मुखर्जी, हम उनके घर में गए और उन्होंने इतने प्यार से, मतलब मुझे लगा ही नहीं कि इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के साथ मैं बैठा हूँ। सच ए हम्बल मैन, एंड ही sang with a small request. I think he was institution. He was not just an ordinary man. He was blessed by the divine, and no wonder such magical voice can only come when you are blessed by the divine. And he was a wonderful man. Yes. रनिंग प्रोजेक्ट ऑफ माइंड अभी मेरी दो फिल्में आ रही हैं। रेड आ रही है एंड एक चल रही है ऑलरेडी, टिको वेट शेरू, एंड 2-3 मोर इन द पाइपलाइन। थैंक यू सर। थैंक यू। लास्ट सिंगल गाना भी उनके साथ रहा। आपकी फिल्म भी रिलीज होने वाली है वेरी शॉर्टली। आज आप स्ट्रीमिंग के लिए आए, बहुत मुझे इट्स अ वेरी स्पेशल डे क्योंकि बप्पी दा की म्यूज़िक तो हमारे कानों में हमेशा गूंजते रहते हैं। तो आज ये जो ओकेशन है तो वेरी स्पेशल ओकेशन फॉर मी क्योंकि ही इज़ द वन एंड ओनली पर्सन हु हैज़ क्रिएटेड सच ह्यूज fan base all over the world through his music, through his whole dedication towards this art. तो मुझे लगता है कि आज ये इसका जो सेलिब्रेशन हो रहा है, being a part of this is making me very special. और ये मूवी बहुत अच्छी फेयर करे, that I will want. और इसका मतलब बॉक्स ऑफिस में एकदम चांद लग जाए, I will want, because this production is like my home production. I consider this as my home production. And so आज I hope Bappi Da is watching wherever he is from heaven, and I think we have all got his blessings now. With his blessings, this movie will be a big hit. और हमारी जो फिल्म है वो भी हम चाह रहे हैं कि और भी अच्छा करें, और भी लोग देखें, और भी लोग चर्चा करें इसके बारे में. And I think this will actually take the next step forward. Your co-acting stars with you right now, Janmay. Oh yeah, Janmay has done a fantastic job, and I think as a newcomer he was very flexible. और I think he's a director's actor. जैसे भी director बोल रहा था, he was performing. और हमारे साथ एक बहुत ही interesting chemistry है इस फिल्म में. And I think we have done some very difficult scenes together, and also very lot of fun scenes. सब मिला के आई थिंक द मूवी हैज़ कम आउट रियली नाइस. और हम डेफिनेटली हमारी जो डायरेक्टर है ललन जी, उनको बहुत ही दाद देंगे इसके लिए. एंड ऑफ कोर्स आवर प्रोड्यूसर्स गोविंद जी, रेमा जी, एंड द होल क्रू हु हैज़ बीन देयर. और हम लोग एक बहुत ही फैंसी लाइक फेरी टेल जैसा शूटिंग किया. इट वाज लाइक लॉट ऑफ गुड मोमेंट्स. ऑब्वियसली वी हमारे लिए ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल जर्नी रहा. And Anumita is also yes, I there. just want to say that Yeah. you know the entire cast will be complete. Actually, please join. Come. Anumita has also performed very well. I think we have done. Yeah, my debut movie was with you.
आज आप बपीदा के लिए आए हैं फिल्म स्क्रीनिंग के लिए, प्लस योर कास्ट इज आल्सो हियर, योर फिल्म इज आल्सो रिलीजिंग शॉर्टली, व्हाट वुड यू लाइक टू से? बहुत अच्छा लग रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल बपीदा का बहुत इम्पॉर्टेंट एंड लास्ट प्रोजेक्ट था ये, और उनका बहुत मन था कि ये मूवी रिलीज़ हो जाए, और आज ये बहुत खुशी की टाइम है दैट वी आर रिलीजिंग दिस फिल्म. सो आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट Govind Bansal sir, Rima Didi, and the whole cast and crew and the whole family, and yeah, that's it. And our movie is also coming, so yeah, my co-actors are there, so yeah. क्या एक्सपेक्टेशन है आपको अपनी फिल्म से? बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है. हमने सबने बहुत मेहनत किया. We all have given our 100%, and it's a beautiful story, and सबने बहुत अच्छे से काम किया. So I really hope this movie will do really good. मैं आपके लिए ज़रूर स्पेशल होगा. Two beautiful women and you the actor in the film. What would you like to say? अच्छा लगा मुझे. स्पेशल था सब कुछ. First film yeah. लगा नहीं ऐसा first है, but first film. So wish you all the best. Thank you so much. Thank you. बपीदा को हम ज़रूर मिस कर रहे हैं. आपके गाने इस फिल्म में रहे जो बहुत ही अच्छी मेलोडी, वी ऑल जस्ट हर्ड इट. क्या कहेंगे आप? आज फिल्म बहुत खुशी है कि बपीदा के हर एक फिल्म में मेरा गाना होता ही था, या तो गाने होते थे या गाना होता था. तो बपीदा मुझे कहते थे कि तुम मेरी सिंगर ही नहीं हो, तुम मेरी असिस्टेंट हो. तो वो बहुत प्यार करते थे. इतने प्यारे इंसान, इतने प्यारे दादा. तो अब ये बहुत अच्छी बात है, क्रेडिट जाता है रीमा को और गोविंद को कि वो लोग, आशीर्वाद है सबका. दादा की जो ड्रीम थी फिल्म रिलीज़ हो, म्यूज़िक आगे आए, फिल्म आगे आए, वो ये लोग पूरी कर रहे हैं. तो बहुत अच्छी बात है. और दादा के नाम पे कुछ भी हो, मेरा होना ज़रूरी है. उनके बिना मेरा. तो रीमा ने मुझे बताया ऐसा, तो मैंने बोला बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता, मैं तो आऊँगी ही, डेफिनेटली आऊँगी. और मुझे खुशी है कि आज दिस मूवी इज सीइंग द लाइट ऑफ द डे, द म्यूज़िक इज सीइंग द लाइट ऑफ द डे. लोग सुनेंगे गानों को. बपीदा नहीं है, लेकिन उनकी खुशबू, उनका संगीत सब चारों तरफ फैला हुआ है, और ये और गाने, नए गाने लोग सुनेंगे उनके. कुछ आपकी मेमोरी अंकल उनके साथ जो आप हमेशा एक चेरिश करेंगे बपीदा के साथ? बपीदा के साथ सब कुछ, ये तो सालों की हमारा एसोसिएशन था. और सबसे बड़ी बात है, बपीदा वॉज नॉट ओनली अ कंपोजर फॉर मी, वो मेरे लिए फैमिली मेम्बर थे. और वो भी मुझे भी बोलते थे कि तुम तो मेरी फैमिली हो. और मैं ही नहीं, मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स और उनके सारे फैमिली मेम्बर्स, हम लोग इतने घुले मिले हुए थे, और घुले मिले हैं अभी भी. और हम लोग तो हमेशा ही फैमिली बन के ही रहेंगे. दादा के रहते और दादा की नहीं रहते भी हम लोग एक ही फैमिली हैं, और हम लोग हमेशा ऐसे रहेंगे. तो और सबसे इजी गोइंग म्यूज़िक डायरेक्टर थे दादा. मतलब उनके साथ काम करने में कोई स्ट्रेस नहीं होता था. वो बोलते थे अपने हिसाब से गाओ, तुम तो मेरी असिस्टेंट हो, तुमको पता है कैसे गाना है, ये मेरी ट्यून है, तुमको पता है कैसे गाना है. असिस्टेंट डालका गाओ, डीजे मौतन गाओ, तुम इतना मौतन किचु भागते हो बिना. तो मैं भी उनके रिकॉर्डिंग में बहुत रिलैक्स रहती थी, और हंसी खुशी काम होता था, और मजाक मस्ती भी होती थी. बहुत ही स्वीट इंसान थे दादा. मैं जितना बोलूँ उतना कम है. और बहुत याद आते हैं, बहुत याद आते हैं. वो गाना गुनगुनाएंगे अलका जी? कौन सा गाना है? क्या अभी उन ऐसे तो या बपीदा का कोई भी एक गाना जो आपने साथ में कभी किया? सावले सलोने तेरी मीठी मीठी बातें, कर दिया तूने मेरा प्यार में जीना मुश्किल. हो सावली सलोनी तेरी झील सी आँखें, इनमें न जाने कहाँ हो गया है मेरा दिल. क्या आपको लगता है कि बपीदा का स्टाइल और बपीदा जैसा गाना अभी दुनिया में कोई आज से है जो? नहीं है, और आएगा भी नहीं. दादा वाज यूनिक. किस तरह के इंसान थे आप? मिलते थे कैसे? कोई मोमेंट बताएंगे आप गाने के दौरान?
कोई वाकया ऐसा शेयर करें कि रिकॉर्डिंग के दौरान जो आप? हाँ बहुत है। वही तो मैं बता ही तो रही थी आपको कि बहुत हंसते खेलते गाना हो जाता था। और दादा को अगर कभी बोलो दादा ये लाइन ऐसे, कोई बात नहीं तुम ऐसे गा लो इसको, मतलब कोई इनके चेहरे पर कभी शिकन नहीं होती थी, हमेशा स्माइल होती थी। और मतलब उनके घर में, उनकी फैमिली में कोई भी ओकेजन हो, दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा, गणेश पूजा, सरस्वती पूजा जो भी, इसमें फर्स्ट दीदी है। हमेशा बोलते थे अलका तुमको आना है, पूजो अच्छे बाड़ी थे। तो कभी ऐसा नहीं होता था कि उनके कोई भी ओकेजन में मैं पार्टिसिपेट ना करूं, या उनके घर में कोई भी गैदरिंग हो और मैं ना जाऊं। जैसा कि मैंने कहा, फैमिली मेंबर, फैमिली, उनकी फैमिली मेरी फैमिली है। आज दुर्गा पंडाल में क्या दादा की कुछ लगाया जाएगा फोटो वगैरह? हाँ ऑफ कोर्स, वो तो है ही। वो और मुखर्जी ब्रदर्स ने ही शुरू किया था नॉर्थ बॉम्बे। उनके पेरेंट्स और हमारे दादा दादी वर द फर्स्ट बंगालीज हु स्टार्टेड नॉर्थ बॉम्बे दुर्गा पूजा। तो आज 75+ ईयर्स हो गए हैं। तो अभी तो चलो गुरुजन लोग ने तो सब चले गए, पर अभी हम जनरेशन्स तो है ही। और दादा तो ये पूजा में मतलब बच्चे से बड़े हुए हैं, और अभी तो वो पूजा माँ की कृपा से, आशीर्वाद से इतना बड़ा हो गया दुर्गा पूजा। और अभी हमारे जनरेशन्स आर टेकिंग फॉरवर्ड। और बप्पा बहुत ही एक्टिव है एंटरटेनमेंट में, तो वो ही पूरा करता है हर टाइम, हर साल सिंगर्स लाना और ये करना। अभी भी अमेरिका में है तो उसने ही सबको करके दिया। मैं बोलना चाह रही थी, अभी बापा का एक मैंने गाना गाया, कंपोज किया हुआ। तो बापीदा का ट्रेडिशन बापा ले जाएगा आगे, और रेमा तो है ही। और स्वास्तिक पूरा फैमिली, म्यूजिकल फैमिली है। दादा की लेगेसी चलती रहेगी जन्मों जन्मों तक। बस आप लोग का आशीर्वाद अपने आप ही आता है। तो क्या कोई बायोग्राफी बनाई जाएगी दादा के ऊपर? हाँ, ऐसे तो 2-3 नहीं प्लान नहीं आ रहे हैं लोग प्रपोजल लेके। तो हम अभी बात करें, अभी 1.5 साल ही हुआ है, तो थोड़ा बहुत हम लोग भी अभी स्लोली एक बाहर तो नहीं आ पाएंगे, पर द शो मस्ट गो ऑन। दादा ऑलवेज बोलते थे द शो मस्ट गो ऑन। कुछ भी हो जाए चलना चाहिए काम, रुकना नहीं है। तो ऐसे तो बहुत प्रपोजल्स आए हैं बायोपिक के लिए। तो वो लोग अभी भी उन्होंने शुरू कर दिया ऑलरेडी, पूछना ये करना म्यूजिशियन से, फैमिली से वो। तो बहुत जल्दी हम लोग विल पुट इट ऑन फ्लोर वेरी सून, वेरी सून। थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम। ऐड करना चाह रहे थे बबीता के बारे में? हाँ, मतलब दादा वाज वेरी पैशनेट। सॉरी, क्वेश्चन। आप दादा के बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, Dada was so passionate about his music and everything, so I'm sure Dada will be very happy from there today. और बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे लिए it's a very good moment that we are here and we're remembering him and we are just releasing his film. So yeah, it's a great thing. Any memory of yours with him? Yes, बहुत सारे मेमोरीज है एक्चुअली। मुझे याद है मैं बहुत उनके घर पे जाती थी, और कोई भी पूजा में, जैसे काली पूजा होता था, दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा, तो हर पूजा में उनके घर पे जाना और सबके साथ मिलना। सो बापीदा के साथ बहुत मेमोरीज हैं, एंड ही इज़ दैट दैट चार्मिंग स्माइल, एंड सबके साथ कैसे ही सो डाउन टू अर्थ। तो ही मतलब उनका जो एक होता है ना, उनका स्माइल, सो दैट इज़ लाइक वेरी पीसफुल। तो दादा को तो हमेशा याद करते हैं हम सब। थैंक यू सो मच। तक स्टिल कांट बिलीव दादा इज़ नो मोर, बापी लहरी, क्योंकि ये पूरी दुनिया में आई थिंक ऐसा इंसान मैंने तो मेरी लाइफ में नहीं देखा। सबसे ज़रूरी है, ही इज़ अ लेजेंड एंड ही इज़ अ फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग। और आज बहुत अच्छा लग रहा है जो बापीदा के सबसे चहेते, एकदम बहुत प्यारा, जो गोविंद बंसल जी, उनकी जमाई, एंड रेमा लाहिरी, बापा लाहिरी, स्पेशली रेमा, जो ये लेगेसी को आगे लेके जाने की जो इनिशिएटिव लिया है, तो दिस इज़ अ फैंटास्टिक। मेरे तो एकदम
लास्ट 25 इयर्स बॉम्बे में जितना जो भी काम किया है मैंने, शोज़ किया, डायरेक्शंस, प्रोडक्शन, मेरे NGO, सब जगह में दादा शामिल है, क्योंकि बप्पी लहिरी नए लोगों को, न्यू कलाकारों को भी बहुत इंस्पायर करते थे और मैं उनकी एकदम फैमिली मेम्बर रह चुकी हूँ। तो इट्स वेरी वेरी ग्रेट मोमेंट फॉर अस जो आज ये फिल्म रिलीज़ हो रहा है और दादा के जो आवाज़ क्रिएशन, ये हम लोग सब मिलके इसको एकदम ज़िंदा रखेंगे और दिल पे दादा हमेशा रहेगा। बप्पी लहिरी जैसा इंसान और लेजेंड कभी और आगे होगा कि नहीं, आई थिंक आई हैव रियली डाउट। ही इज़ गॉट एंड आई रियली बहुत अच्छा लग रहा है जी रेमा ने याद करके दादा को, दादा जिन को प्यार करते थे, जिनको सपोर्ट करते थे, हमेशा जैसे बुलाते थे उनके घर पे, सबको याद करके आज इस मोमेंट पे बुलाया। आई वाज इन कलकत्ता बट रेमा ने याद करके ये चीज़ को आगे लेके जा रहा है। दैट्स अ फैंटास्टिक। थैंक यू वेरी मच एंड बप्पी लहिरी जी ऑलवेज रिमेन इन आवर हार्ट। ये आउटफिट पहनकर पूरा गोल्ड, which Dada actually believes in wearing gold. I've dressed for the occasion. तो may Dada's soul rest in everlasting peace. और मुझे कुछ गाना गुनगुनाया उनके लिए as a tribute. चिरोदिनी तुमी जे आमार, जुगे जुगे आमी तुम्हारी, याद आ रहा है तेरा प्यार. May his legacy live on and all his wishes, whatever he had actually thought about in terms of songs and films, his daughter Reema and his son keeps it on, and Bappida forever. Thank you so much.